Hello everyone. So, since we all know that we are covering chapter number 23 of M. Lakshmikant, 8th editions, that is the Parliament. Until now, we have covered the different kind of funds which is mentioned under the constitutions, which is Consolidated Fund of India, Public Account of India, and Contingency Fund of India. We have dealt these funds. Okay. So now we are starting from the multifunctional role of the parliament, and we are expecting that we will end this chapter in this video only. Although it's only expectations because chapter a bit lengthy, so we will try to wind up in this video as much as possible. So, okay, so let's start with the multifunctional role of the parliament. So in look, first we have need to decode this word multifunctional. That means not only single function but many functions. The different kind of function that is performed by our parliament is known as multifunctional role of parliament. Okay, so let's begin. In the Indian political administrative system, the parliament occupies a central positions and has a multifunctional roles. Of course, okay. So the parliament is basically a central position. Of course, it lies in a central position in Indian political administrative systems. Okay, so the function of parliament is not just concentrated on a single task, but it have multiple tasks. Okay, so now let's see how many, which of the following tasks comes under multifunctional role of the parliament. So the first one is legislative power and functions. Okay, the parliament have certain legislative power. That means they have the power to lawmaking. Okay, and the second one is executive power and function. Parliament have also executive power and function. Executive, as we all know, that is derived from the legislature only. Okay, so this have also these are also belongs to Indian Parliament. Okay, financial power and function, constitution power and function, judicial power and function, electoral power and functions, and other power and functions. Okay, so let's deal one by one. So first one is legislative power and functions. Okay, तो अब हम समझते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का. ठीक, देखो जो पार्लियामेंट का प्राइमरी रोल है ना वो तो लॉ मेकिंग ही है फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ठीक है, इट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट इनोमिनेटेड इन द यूनियन लिस्ट. ओके, एंड ऑन द रेजिडरी सब्जेक्ट. तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो हमने पढ़ा है कि 7th शेड्यूल में जो फंक्शन है ना यूनियन के, स्टेट के, ठीक, और कुछ फंक्शन कॉन्करेंट लिस्ट में भी है. ठीक, तो इन सारे मैटर पे जो फंक्शन अंडर यूनियन लिस्ट आते हैं उन पे लेजिस्लेट कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट करती है. ठीक है, लेजिस्लेचर ही तो करता है यूनियन गवर्नमेंट में. ठीक, तो वो हो गया. तो अगर बात करें इसकी हम तो सिंपल भाषा में जो पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है वो यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाने का है और प्लस रेजिडरी पावर है. जो सब्जेक्ट ना तो यूनियन लिस्ट में मेंशन है ना स्टेट लिस्ट में मेंशन है वो रेजिडरी सब्जेक्ट कहलाते हैं. ठीक है, विथ रिगार्ड टू कॉन्करेंट, अब देखो कॉन्करेंट लिस्ट में भी क्या सीन है कि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं. बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द यूनियन लॉ विच इज प्रिवेल. ओके, बट वन कंडीशन कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे किसी स्टेट ने कोई एक्ट बना दिया है और उसे प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है, ठीक है, रिजर्व कर दिया गया है गवर्नर के थ्रू, या प्रेसिडेंट ने उसे अप्रूव कर दिया है, तो फिर उस केस में कॉन्करेंट लिस्ट पे जो स्टेट ने लॉ बनाया है वो प्रिवेल करेगा. ठीक है, तो ये है लॉ मेकिंग पावर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ सब्जेक्ट इनोमिनेटेड इन द स्टेट लिस्ट. ओके, स्टेट लिस्ट पे भी जो पार्लियामेंट है वो बना सकता है. हमने पढ़े थे ऊपर कि 5 केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो पार्लियामेंट है ना वो स्टेट के सब्जेक्ट पे भी लॉ मेकिंग कर सकता है. जैसे पहला कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे कि भैया आपको नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है कि आप स्टेट के इस लिस्ट पे कानून बनाओ, ठीक है, इस मैटर पे कानून बनाओ, तो पार्लियामेंट बना सकता है. सेकेंड ये है कि अगर नेशनल इमरजेंसी हो तो जो लॉ मेकिंग पावर होती है स्टेट की ना वो भी पार्लियामेंट के पास ही आ जाती है. अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है. ठीक है, थर्ड केस है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट से कि आप जो है हमारे स्टेट के लिए
ला बना दो हमारी स्टेट लिस्ट पे। ओके, तो इन्हीं दो स्टेट पे लागू होगा जो पार्लियामेंट ला बनाएगी, लेकिन अदर स्टेट भी चाहें तो एक सिंपल मेजोरिटी से अपने स्टेट में रेजोल्यूशन पास करके उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। डी है कि व्हेन नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया, ट्रीटीज हो गई, कन्वेंशन हो गया, और अगर उसको इफेक्ट में लाना है तो अगर उसको इफेक्ट में लाने के लिए ऐसा जरूरी हो कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे भी ला बनाना आवश्यक हो गया हो, तो इस कंडीशन में पार्लियामेंट क्या है कि स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। ठीक है। उसके बाद है प्रेसिडेंट रूल। अगर किसी जगह पे प्रेसिडेंट रूल ऑपरेशन में है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ना, उसका फंक्शन कहीं ना कहीं पार्लियामेंट परफॉर्म करता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखना हो ना तो आर्टिकल 370 का जब एबोलिश किया गया इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, 35A वाला साथ में भी बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक, 1954 वाले को हमने अमेंड किया था। ठीक, तो उसमें क्या हुआ था कि पार्लियामेंट ने डुअल रोल परफॉर्म किया था। जब पहली बार मिली तो एज ए जम्मू कश्मीर पहले प्रेसिडेंट रूल लगाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, ड्यूरिंग एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370। उस टाइम क्या हुआ, पार्लियामेंट ने लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल परफॉर्म किया जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम जब मिली तो उसने पार्लियामेंट का रोल परफॉर्म किया। ठीक, तो प्रेसिडेंट रूल जहां ऑपरेशन में हो उस केस में भी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव के मैटर पे कानून बना सकती है। ठीक है। ऑल द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक आफ्टर इट्स असेंबली। ठीक है। मान लो कोई ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, लाइक कि जब आपकी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी ना तो 6 महीने के अंदर ही उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट अप्रूव करेगी। एंड ऑर्डिनेंस बिकम इनऑपरेटिव इफ इट इज नॉट अप्रूव बाय पार्लियामेंट विद इन दैट पीरियड। अगर 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव नहीं करती है तो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, खुद ही इनऑपरेटिव हो जाएगा। द पार्लियामेंट मेक ला इन स्केलेटन फॉर्म एंड अथराइज द एग्जीक्यूटिव टू मेक डिटेल्स रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो, पार्लियामेंट जो ला बनाता है ना वो एक ढांचा तैयार करता है, जो उसके अंदर रूल रेगुलेशन होता है वो बेसिकली कौन तैयार करता है, एग्जीक्यूटिव तैयार करता है। ठीक है। बट वो जो रूल रेगुलेशन होता है ना वो कहीं ना कहीं वो जो ढांचा बनाया है ना पार्लियामेंट में उसी के अंदर ही रहना चाहिए। दिस इज नोन एज डेलीगेट लेजिस्लेशन। इसी को हम डेलीगेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। ठीक है। आर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, आर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक, बस डेलीगेट लेजिस्लेशन का आप इतना सा मतलब जानिए कि जब कोई पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है ना तो एक ब्रॉड वे में एक कानून बनाती है। अब उसमें कुछ माइनर डिटेल हैं जैसे रूल हो गया, रेगुलेशन हो गया, तो वो एग्जीक्यूटिव को बोलती है कि आप मेरे बिहाफ पे बनाओ। ठीक है, इस चीज़ को तो ये लेजिस्लेटिव ने क्या किया, लेजिस्लेटिव ने अपना कुछ पावर डेलीगेट कर दिया इसको एग्जीक्यूटिव को, इसी को डेलीगेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन। अगर एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन की बात करें पार्लियामेंट की तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया है एज वी ऑल नो। ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किसको, पार्लियामेंट को, अपने पॉलिसीज एंड एक्ट के लिए। हैंस द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू द क्वेश्चन आवर। ठीक है, इसी वजह से पार्लियामेंट जो है ना वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल भी रखती है। जैसे क्वेश्चन आवर हो गए, 0 आवर हो गए, हमने ऊपर देखे ना सारे, हाफ एन आवर डिस्कशन हो गए, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो गए, कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गए, एडजमेंट मोशन हो गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गए, सेंसर मोशन हो गए, या अदर टाइप के डिस्कशन भी हो गए जो कि हम देख चुके हैं ऊपर। ठीक है, इट आल्सो surprises the activities of the executive with the help of its committee like committee on government assurance, committee on subordinate legislation, committee on petition. ओके, तो बेसिकली पार्लियामेंट क्या करता है, लेजिस्लेचर क्या करता है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना उसकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज भी करता है। किसके थ्रू, जो डिफरेंट टाइप की कमिटीज़ होती हैं, जैसे कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस हो गई, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो गई, कमिटी ऑन पिटीशन एक्सेट्रा के थ्रू। ठीक, द मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। हम जानते हैं कि मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। ठीक है, पार्लियामेंट इन जनरल और लोकसभा के लिए पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज ए पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ईच मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर हिज हर चार्ज। देखो, ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हो गई कि जो पूरी एग्जीक्यूटिव होगी वो लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जैसे मिनिस्ट्री है ना डिफरेंट, तो डिफरेंट मिनिस्ट्री इंडिविजुअल मिनिस्टर के अंदर रहती है,
उस इंडिविजुअल मिनिस्टर का ये ड्यूटी बनता है कि वो अपनी मिनिस्ट्री का काम एक इफिशियंट तरीके से करे। ये हो गई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, दिस मीन्स दैट दे कंटिन्यू इन ऑफिस सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी मेंबर इन लोकसभा। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी हुआ, रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये भी हुआ कि जो पार्लियामेंट चाहेगी ना तो मेजोरिटी से उन्हें रिमूव भी कर सकती है। मतलब कि वो तब तक ही अपने पावर को एग्जीक्यूटिव एंजॉय कर सकता है जब तक कि लोकसभा में उसकी मेजोरिटी है। इन अदर वर्ड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय लोकसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा की ऑफिस से निकाला भी जा सकता है बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। द लोकसभा कैन आल्सो एक्सप्रेस लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट द फॉलोइंग इज। ठीक, लोकसभा चाहे तो अपना कॉन्फिडेंस मतलब लेक ऑफ कॉन्फिडेंस भी शो कर सकता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। किस तरीके से? तो पहला कि जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है ना, प्रेसिडेंट इनॉग्रेल एड्रेस पे अपने जो एवरी ईयर और आफ्टर जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो देखो प्रेसिडेंट क्या करता है, मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, जब लोकसभा का इनॉग्रेल सेरेमनी होती है तो मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं देता है। ठीक, अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता ना तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये गवर्नमेंट है ना ये कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो लोकसभा है उसके कॉन्फिडेंस को एंजॉय नहीं कर पा रही है। ये कारण हो सकता है गवर्नमेंट के रिजिग्नेशन का। ठीक है, बाय रिजेक्टिंग अ मनी बिल। मान लो किसी गवर्नमेंट ने मनी बिल, फाइनेंस मिनिस्टर ने मनी बिल जो है प्रेजेंट किया और मनी बिल ही नहीं पास हो पाया तो भी माना जाएगा कि ये जो गवर्नमेंट है ना इसने कहीं ना कहीं लोकसभा का कॉन्फिडेंस लॉस कर दिया है। बाय पासिंग अ सेंसर मोशन और एन एडजमेंट मोशन। हमने देखा था सेंसर मोशन, एडजमेंट मोशन, ठीक है, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लाया जाता है। ठीक, कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाया जाता है। अगर ये भी पास हो जाता है, ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर, ठीक है, या लोकसभा का जो कॉन्फिडेंस है एंजॉय नहीं कर पा रही है। ठीक है, बाय डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन वाइटल इशू। कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है उस इशू पे गवर्नमेंट ही डिफीट कर दी जाए। मतलब गवर्नमेंट तो उसी की होती है ना जिसकी मेजोरिटी होती है। अब जब मेजोरिटी मेंबर ही उसके किसी इशू को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है। ठीक है, बाय पासिंग अ कट मोशन। हमने देखा था पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, ठीक है, टोकन कट मोशन। तो अगर ये सब भी चीज़ें पास हो जाती है ना तो इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस खो रही है। ठीक है, इन द आई ऑफ लोकसभा। इसीलिए पहला फंक्शन जो पार्लियामेंट का है, ठीक है, कि एक ग्रुप को सिलेक्ट करना जो गवर्नमेंट बना पाए। ठीक है, ठीक है, तो ठीक पहला फंक्शन है पार्लियामेंट का कि वो एक ग्रुप को सिलेक्ट करे जो गवर्नमेंट बना पाए। ठीक है, सपोर्ट एंड सस्टेन इट इन पावर सो लॉन्ग एज इट एंजॉय इट्स कॉन्फिडेंस। जब तक वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करेगा लोकसभा का तब तक वो पावर में रहेगा जो ग्रुप गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, एंड टू एक्सपेल इट व्हेन इट सीज टू डू सो। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस लूज करेगा तो उसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड लीव इट टू द पीपल टू डिसाइड द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। ओके, उसके बाद ये पीपल पर डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट टाइम किस गवर्नमेंट को चूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन की बात करें तो देखो पार्लियामेंट के पास कौन कौन से फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन है। ठीक है, नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड एंड नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कोई भी टैक्स चाहे लगाने की बात हो या कलेक्ट करने की बात हो, ठीक है, या कोई एक्सपेंडिचर करने की बात हो, वो तभी एग्जीक्यूटिव कर पाएगा जब कहीं ना कहीं पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा। हैंस द बजट इज प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल। इसीलिए तो जो बजट होता है वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है अप्रूवल के लिए। द एनेक्टमेंट ऑफ द बजट बाय द पार्लियामेंट लीगलाइज द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जब बजट इनेक्ट हो जाता ना तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट ने ये अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट को कि आप पैसे रिसिप्ट लो। ठीक है, आप पैसे जो आ रहे हैं, ठीक है, वो आप लो, उसकी आपके पास लीगलिटी है। ठीक है, आपके पास अथॉरिटी है कि आप रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर कर सकते हो। ठीक है, इन द फाइनेंशियल ईयर। अब देखो पार्लियामेंट ना
पार्लियामेंट ही तो स्क्रूटनाइज करती है गवर्नमेंट के स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इट्स फाइनेंशियल कमिटी। दिस इंक्लूड पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टीमेट कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। जो ये कमिटीज़ है ना, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, एस्टीमेट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, इनका काम क्या है? बेसिकली इन्हीं तो स्क्रूटनाइज करती हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को, ठीक है। दे ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ इलीगल, इरेगुलर एंड अथोराइज इम्प्रॉपर। अगर कहीं पे कोई इलीगल, अनऑथोराइज या फिर इरेगुलर या इम्प्रॉपर यूज़ होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट, जो पब्लिक मनी है, ठीक है, उसका एक्स्ट्रा बैगेंट तरीके से अनावश्यक खर्चे होते हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? ये जो कमिटीज़ होती हैं यही तो कहीं ना कहीं इस पर एक कंट्रोल करने की भूमिका निभाते हैं, यही तो स्क्रूटनाइज करते हैं कि जो पैसे अलॉट हुए थे क्या वो जुडिशली स्पेंड हुए हैं कि नहीं, ठीक है। अब Therefore, the parliamentary control over the executive in financial matter operate in two stages, ठीक है। जो पार्लियामेंट का कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर ओवर द फाइनेंशियल मैटर, बेसिकली दो स्टेजेस में काम करता है। पहला कि बजटरी कंट्रोल, पहला तो बजटरी कंट्रोल, दैट इज द कंट्रोल बिफोर द अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट थ्रू द इनेक्टमेंट ऑफ बजट, ठीक है। अप्रोप्रिएशन जो एक्ट पास होता है ना, जिसके थ्रू मनी निकालने का अधिकार हो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उससे पहले भी तो बजट पास करवाना जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला स्टेज तो ये हो गया, ठीक, जहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव के फाइनेंशियल मैटर को कंट्रोल करती है। दूसरा ये हो गया कि जब बजट पास हो गया, ठीक है, तब क्या होगा? जैसे अप्रोप्रिएशन एक्ट जब पास हो गया, ठीक, तो जो ये 3 फाइनेंशियल कमेटी हमने ऊपर देखी ना, ये कहीं ना कहीं स्क्रूटनाइज भी करती हैं इन चीज़ों को, ठीक है। पोस्ट बजटरी कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल आफ्टर द अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट थ्रू 3 फाइनेंशियल कमेटी। अभी हमने देख लिया कैसे ये जो है स्क्रूटनी करती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को, ठीक है। तो ये 2 स्टेजेस में पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है ओवर द एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल मैटर। द बजट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी, ठीक है, दैट इज द पार्लियामेंट ग्रांट मनी टू द गवर्नमेंट फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। बजट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी पे वर्क करता है कि जो पार्लियामेंट ग्रांट करता है मनी ना, वो केवल 1 साल के लिए ही होता है। इफ द ग्रांटेड मनी इज नॉट स्पेंड बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो ग्रांट की गई है मनी, ठीक है, थ्रू बजट पास होने के बाद, ठीक है, अगर उस फाइनेंशियल में वो स्पेंड नहीं होती तो जो एक्सपायर हो गया ना, जितने बैलेंस बचे हैं वो दोबारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाएंगे। यही है प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज द रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स का मतलब इतना सा हुआ कि भैया आपको बजट के थ्रू हमने पैसे अलॉट किए कि आप पैसे की स्पेंडिंग करो। अब मान लो कि आप उतने पैसे की स्पेंडिंग नहीं कर पाए, तो जो पैसे बचे हैं वो दोबारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाएंगे। इसे ही रूल ऑफ लैप्स बोलते हैं, ठीक है। It facilitates effective financial control by the parliament, as no reverse fund can be built without its authorizations, ठीक है। However, the observance of this rule led to a heavy rush of expenditure toward the close of the financial। अब देखो, शुरुआत में तो गवर्नमेंट काम करना चाहती है नहीं, ठीक है। अब जो पैसे नहीं एक्सपेंड हुए होंगे वो वापस चले जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसीलिए जब फाइनेंशियल ईयर का जो ये दिसंबर मार्च वर्ष का महीना होता है ना, उसे मार्च रस भी बोलते हैं। उस टाइम ही इन लोग को जोर लग जाता है कि भैया आप सारे पैसे खर्च कर दें, नहीं क्या ही मतलब रहेगा, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा, ठीक है, करप्शन तो फिर कर नहीं पाएंगे, ठीक। तो वही रीजन है, इसी को मार्च रस बोलते हैं, ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? तो पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसकी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। किस तरीके से? कि उसमें कुछ ऐड कर सकती है, उसमें कुछ बदलाव कर सकती है, उसके कुछ प्रोविजन को रिपील कर सकती है। द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद द स्पेशल मेजोरिटी। जो मेजर पार्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट के थ्रू बाई स्पेशल मेजोरिटी अमेंड हो सकता है। हमने आर्टिकल 368 में बात की थी 2 टाइप की स्पेशल मेजोरिटी, एक जो फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करती है, टाइप 2 वाली स्पेशल मेजोरिटी थी, और पहला स्पेशल मेजोरिटी दैट इज मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, नो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सेकंड वाले में क्या था कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गिव देयर अप्रूवल, ठीक है, वो फेडरल फीचर को अगर चेंज करने की बात हुई थी, ठीक।
तो मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद द स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउसेस। सम अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद सिंपल मेजोरिटी। कुछ प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के ना उसे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, जैसे आर्टिकल 2 एंड 3 की हमने बात की थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्सेट्रा की, ठीक है। दैट इज द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओनली अ फ्यू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड विद द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। वही हमने फेडरल फीचर की बात की कि जो उसको इम्पैक्ट करेगा उसमें मेजोरिटी काम आएगी, ठीक है। ठीक, अब देखो जो अप्रूवल देती है ना, कंसेंट देती है हाफ ऑफ द स्टेट, उनको किस मेजोरिटी, वो किस मेजोरिटी के साथ देती है, तो उनकी मेजोरिटी उनके स्टेट लेजिस्लेटिव में असेंबली में कौन सी मेजोरिटी की जरूरत होती है, तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। However, the power to initiate the process of amendment of the Constitution in all the three cases lies exclusively in the hands of Parliament। जो पावर होगा ना कि जो अमेंडमेंट का प्रोसेस इनिशिएट करने का, ये तीनों केसेस में, चाहे वो सिंपल मेजोरिटी से हो, चाहे स्पेशल मेजोरिटी से हो, चाहे रेटिफिकेशन स्पेशल मेजोरिटी के साथ स्टेट की रेटिफिकेशन की बात हो, तीनों केसेस में जो अमेंडमेंट का प्रोसेस इनिशिएट होता है, कौन शुरू करता है, तो पार्लियामेंट ही शुरू करती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटर का इसमें कोई रोल नहीं होता है इनिशिएट करने में। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, केवल एक एक्सेप्शन है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला हमने पहले भी पढ़ा था, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर क्रिएशन और एबोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। एक ही केस में देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एबोल्यूशन या क्रिएशन होगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें जो सेंटर है ना डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, जो लेजिस्लेट या क्रिएट नहीं कर सकता, इसके लिए पहले स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट करता है, तो इसमें कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट को इनिशिएट करता है, बस यही एक पॉइंट है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें ना तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को 3 तरीके से अमेंड कर सकता है। पहला बाई सिंपल मेजोरिटी, दूसरा बाई स्पेशल मेजोरिटी, तीसरा बाई स्पेशल मेजोरिटी बट विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो बी एंड सी वाला है ये अंडर आर्टिकल 368 के मेंशन है, जबकि जो सिंपल मेजोरिटी कॉन्सेप्ट है ये 368 के अमेंडमेंट से बाहर है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अनलिमिटेड। जो पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है ना, ठीक, वो अनलिमिटेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पावर थी वो अनलिमिटेड थी, लेकिन पार्लियामेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। इस पे कैप है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिक फीचर हमने पहले ही बात की थी कि बेसिक फीचर किसी गाड़ी के उस पहिए की तरह काम करते हैं कि अगर उसमें से एक भी इधर उधर निकला तो पूरे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है। दैट्स व्हाट वी कॉल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। केशवानंद भारती केस हमने पढ़ा था 1973 वाला, ठीक है। अब जुडिशियल पावर एंड फंक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर भी हैं और फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि वो प्रेसिडेंट को चाहे तो इम्पीच कर सकता है फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा कि ये वाइस प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकता है, राज्यसभा का हमने पढ़ा है, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू। इट कैन रिकमेंड द रिमूवल ऑफ जजेस को निकालना है, चाहे वो चीफ जस्टिस हों सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, तो उनको रिमूव करने के लिए रिकमेंडेशन कौन, पार्लियामेंट ही कहीं ना कहीं देती है। चीफ इलेक्शन कमीशन को निकालना हुआ, स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक्सपेल करना हुआ, ठीक है, या कंट्रोलर डायरेक्टर जनरल को रिमूव करना हुआ, तो इन सब के लिए जो रिकमेंडेशन का काम करता है कौन, पार्लियामेंट ही करती है। इट कैन पुनिश इट्स मेंबर आर आउटसाइडर फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज और इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है। अगर कोई आउटसाइडर है, ठीक, या कोई मेंबर है, अगर वो जो पार्लियामेंट का प्रिविलेज है ना जो मिलता है एज ए इंडिविजुअल प्रिविलेज और कलेक्टिव प्रिविलेज, अगर कोई इसको ब्रीच करता है तो कंटेम्प्ट भी लगा सकता है, ठीक है। अब इलेक्टोरल पावर एंड फंक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट पार्टिसिपेट, देखो पार्लियामेंट किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट करती है, इलेक्टोरल पावर किस किस चीज़ में होता है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, लोकसभा में जो स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए, उनका इलेक्शन की बात हो गई, राज्यसभा में इस जो डिप्टी चेयरमैन हो गए उनकी बात हो गई, चेयरमैन की तो बात होगी नहीं क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो होता है, ठीक है। तो हमने वाइस प्रेसिडेंट का देख ही लिया ऊपर कि ये भी इलेक्टोरल पावर के अंदर आता है पार्लियामेंट की, ठीक है। द पार्लियामेंट इज आल्सो ऑथराइज टू मेक लॉ टू रेगुलेट द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसके इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को से रिलेटेड इलेक्शन, ठीक है, दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के उससे रिलेटेड इलेक्शन, ठीक है, बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड इलेक्शन, तो इस पर भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाकर इसको रेगुलेट कर सकता है, इन ऑफिस के इलेक्शन को भी, ठीक है। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इलेक्टेड
इनेक्टेड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट। देखो इसने इसी तरह से रेगुलेट किया था ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन को थ्रू इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ दैट इज प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, अब कुछ अदर पावर एंड फंक्शन की बात करें पार्लियामेंट की, तो इसमें आ गया कि इट सर्व एज अ हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी इन द कंट्री, इट डिस्कस वेरियस इशू ऑफ नेशनल इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, जो नेशनल या इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की बातें हैं, ठीक है, उस पर डेलिबरेट और डिस्कशन कौन करता है? पार्लियामेंट ही तो करती है। ठीक है, तो हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी है। ठीक है, इट अप्रूव ऑल द 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, तीनों टाइप की इमरजेंसी जो है ना 352, 356 एंड 360 वाली, उसे कौन प्रोक्लेम करता है? उसको अप्रूव कौन करता है? तो पार्लियामेंट ही अप्रूव करती है ना, प्रेसिडेंट तो बस प्रोक्लेम करता है। इट कैन क्रिएट और एबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, कि स्टेट जब रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं क्रिएट भी कर सकती है, एबॉलिश भी कर सकती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये बाउंड्री एरिया नेम वगैरह भी स्टेट्स के उसको भी इंक्रीज डिक्रीज या चेंज कर सकती है। ठीक, इट कैन रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन जुडिक्शन को भी, हाई कोर्ट के भी, ठीक है, उसको भी रेगुलेट करती है। ठीक है, दो स्टेट, दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, अब इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें। ठीक, तो अब देखिए इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल की बात करें, तो अभी तक जो हमने ऊपर पावर एंड फंक्शन देखे ना पार्लियामेंट के, वो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल में उतने पावर नहीं है। ठीक है, जितना वास्तव में जितना इफेक्टिव होना चाहिए कंट्रोल पार्लियामेंट का ओवर द गवर्नमेंट, उतना होता नहीं है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसी इनइफेक्टिवनेस के लिए? तो पहला है कि द पार्लियामेंट हैज़ नाइदर टाइम नॉर एक्सपर्टीज टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन विच हैज़ ग्रोन द वॉल्यूम एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ना ही इतना टाइम है और ना ही इतने एक्सपर्ट उसमें बैठे हैं जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन वैसे भी डे बाई डे काफ़ी बढ़ता जा रहा है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। तो पार्लियामेंट के पास ना ही उतना टाइम है और ना ही उतनी एक्सपर्टीज़ है कि कंट्रोल कर सके। दूसरा है कि पार्लियामेंट्स फाइनेंशियल कंट्रोल इज हैंडेड बाय द टेक्निकल नेचर ऑफ द डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। देखो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में जो पैसे मिलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल नेचर के हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये टेक्निकल नेचर होने की वजह से ना, अब देखो जो डिफरेंट टाइप की डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, उसमें क्यों इतनी कमेटियां हैं? क्योंकि 24 कमेटी हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक्सपर्ट मेंबर भी लाया जाता है। ठीक है, ताकि जो टेक्निकल नेचर है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का, उसको अच्छे से एग्जामिन कर सकें। अब पार्लियामेंट इस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे कर पाएगी जब उसके पास उतनी एक्सपर्टीज ही नहीं है? ठीक है, वो तो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हो तो अलग अपना फंक्शन करती है। जो नॉर्मल मेंबर है उनके पास इतनी एक्सपर्टीज थोड़ी नहीं है कि वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकें। द पार्लियामेंटेरियन बीइंग लेमेन कैन नॉट अंडरस्टैंड देम प्रॉपर्ली एंड फुली। जो पार्लियामेंटेरियन तो गंवार हैं ही, सबको पता है, अनपढ़ आ जाते हैं पार्लियामेंट में बैठने के लिए, गुंडे मवाली, ये असलियत है भारत के पार्लियामेंट की। ठीक है, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो खुद ही बैठे हैं सेक्रेटेरिएट के सहारे। द लेजिस्लेटिव लीडरशिप लाइव्स विद द एग्जीक्यूटिव एंड इट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेटिंग पॉलिसी। द लेजिस्लेटिव लीडरशिप लाइव्स विद द एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है ना, वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के साथ लाई करती है एंड इट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। द वेरी साइज ऑफ पार्लियामेंट इज टू लार्ज। अब देखो जो पार्लियामेंट की साइज है ना 545 मेंबर्स, ठीक है, कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो वो खुद में अनमैनेजेबल है भाई। मुद्दे को मैनेज करेंगे उससे पहले खुद ही मैनेज हो जाओ। ठीक है, असली बात तो ये है ना। उसके बाद देखो और क्या रीजन है? द मेजोरिटी सपोर्ट टू एंजॉय बाय एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव क्रिटिसिज्म। देखो जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी एंजॉय करती है। अब कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अब की बार 400 पार हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में तो भाई जो अपोजिशन है, उस जो अपोजिशन के मेंबर हैं पार्लियामेंट में, वो इतने कम होते हैं कि सही से क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाते। उसका क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करते हैं तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको बोलने ही नहीं देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रीजन है कि द फाइनेंशियल कमिटी लाइक पब्लिक अकाउंट कमिटी एग्जामिन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो जो कमिटीज अभी हमने पढ़ी ना, पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, एस्टिमेट कमिटी, ये सब कहीं ना जब पैसे खर्च हो जाते हैं तब उसको एग्जामिन करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके जो पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है, उसकी मितव्ययता को चेक करते हैं कि सही खर्च हुआ है कि नहीं। उसके बाद अब भाई जब खर्च हो गए तो आप उस पर क्या ही कर लोगे। ठीक है, आपको सुझाव दे सकते हो और वो भी डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट एक्सेप्ट करती है कि नहीं एक्सेप्ट करती है। ठीक है,
ये कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की तरह काम करते हैं, जो कमिटीज़ हैं डिफरेंट टाइप की, ठीक है, पोस्ट एक्सपेंडिचर के बाद, ठीक। द इंक्रीज रिकर्स ऑफ गिलेटिन रिड्यूस द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। गिलेटिन हमने देखा कि भाई जितना डिस्कस हो पाया बजट डिस्कस हो पाया, बाकी अनडिस्कस पार्ट को डिस्कस पार्ट के साथ मिला के पास कर दो, इसी गिलेटिन तो हम बोलते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं लिमिट करता है जो पार्लियामेंट है उसका फाइनेंशियल कंट्रोल को ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन, डेलीगेट कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री वो भी बहुत लेजी टाइप के हैं, वो भी डेलीगेट कर देते हैं जो फंक्शन होते हैं। अभी हमने ऊपर देखा ना कि रूल रेगुलेशन को एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं वही अपना पत्ता झाड़ ले रहे हैं। द ग्रोथ ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन हैज रिड्यूस द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन मेकिंग डिटेल लॉ एंड हैज इंक्रीज द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के पास जो पावर है कहीं ना कहीं वो बढ़ती जा रही है, ठीक। पार्लियामेंट खुद में कुछ करना नहीं चाहते, उनकी जेब में बस पैसे आने चाहिए। द फ्रिक्वेंट प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट डायल्यूट्स द पार्लियामेंट्स पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। प्रेसिडेंट अलग से ही अपना ऑर्डिनेंस ठोकते रहता है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं हैम्पर करती है कि पार्लियामेंट का जो पावर है लेजिस्लेशन में। द पार्लियामेंट कंट्रोल इन पॉलिटिक जनरल एंड मोस्टली पॉलिटिकल नेचर। पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है कभी कदार जनरल रूप से ये पॉलिटिकल नेचर का है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी पोजिशन द पार्लियामेंट। भाई स्ट्रॉन्ग स्टेडी अपोजिशन जब पार्लियामेंट में नहीं रहेगा तो कैसे क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट को, ठीक है। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में अपोजिशन ही तो है जो गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट में जो मेन भूमिका है क्रिटिसिज्म वगैरह की, कंट्रोल वगैरह की, तो वो अपोजिशन ही तो करता है। अब जब अपोजिशन ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो क्या ही हो जाएगा देश में। एंड सेटबैक इन द पार्लियामेंट्री बिहेवियर एंड इथिक्स हैव आल्सो। देखो कहीं ना कहीं जो इथिक्स है वो नहीं है, बात बात पे तो लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ वीडियो देख रहा है पार्लियामेंट में बैठ के, ठीक है। हैव आल्सो कंट्रोल इन इफेक्टिवनेस ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। अब राज्यसभा की पोजीशन की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ राज्यसभा एज कम्पेयर विद द लोकसभा इज फ्रॉम द 3 एंगल्स, ठीक। अब राज्यसभा लोकसभा में जो पोजीशन है ना उसकी बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा कुछ मैटर में लोकसभा के इक्वल है, जैसे ऑर्डिनरी बिल को पास करना हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करना हुआ। वह राज्यसभा इज अनइक्वल टू लोकसभा। मनी बिल में राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं है ना। राज्यसभा हैज स्पेशल पावर दैट आर नॉट सेड विद लोकसभा। कुछ केसेस में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर भी है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने का, ठीक। अब देखो जो इक्वल स्टेटस है लोकसभा के पास, जो इक्वल स्टेटस है राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर जिसमें स्टेटस है वो कौन से मैटर हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोडक्शन एंड पासेज की बात कर लें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इंट्रोड्यूस एंड पासेज की बात कर लें, ठीक है। फाइनेंस बिल के इंट्रोडक्शन एंड पासेज की बात कर लें जिसमें कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर लें, लोकसभा राज्यसभा के इक्वल रूल होता है, वो भी वोट करते हैं, ठीक है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लें, राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं, ठीक। राज्यसभा केवल खुद ही वाइस प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है उसको इनिशिएट कर सकता है, रिमूवल को इनिशिएट कर सकता है, इम्पीचमेंट नहीं बोलेंगे, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के लिए होता है। ही सी इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। देखो जाहिर सी बात है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का, हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिमूव करना हो तो इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद लोकसभा को भी सिंपल मेजोरिटी से एग्री करना पड़ेगा, तभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। छठा है कि मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस। देखो जो रिकमेंडेशन मतलब देना होता है ना कि भाई चीफ जस्टिस को रिमूव करना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को रिमूव करना है, इस मैटर में भी राज्यसभा के पास कहीं ना कहीं इक्वल पावर होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना हुआ, अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है तो कहीं ना कहीं और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब इशू करता है, जब लोकसभा नहीं होती है सेशन में, तो राज्यसभा ही तो उसे अप्रूव करती है। तो इस मैटर में भी इसके पास जो लोकसभा के पावर में पैरिटी है, ठीक है, राज्यसभा के साथ, ठीक। अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी जब अप्रूव होती है मे बी पार्लियामेंट इज इन नॉट सेशन, ओके। इन सच केसेस राज्यसभा इज द सोल बॉडी विच अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, प्रोवाइडिंग दैट लोकसभा व्हेन केम इन सेशन विल अप्रूव विद इन मीन टाइम, ठीक है। अब है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अगर सिलेक्ट करना हुआ तो उसको राज्यसभा से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। बहुत से एग्जांपल हैं, इंदिरा जी हो गई, मनमोहन सिंह हो गए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कैन बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है। मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर दोनों हाउस का मेंबर हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। हाउएवर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंबरशिप दे आर रिस्पांसिबल टू द ओनली टू द लोकसभा। लेकिन वो रिस्पांसिबल किसको होगा, केवल लोकसभा को ही होगा। कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देखो जो फाइनेंस कमीशन हो गया, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, तो इसकी जो रिपोर्ट होती है ना उसको कंसिडरेशन करने में भी राज्यसभा के पास इक्वल पावर होता है, ठीक है।
अब सुप्रीम कोर्ट या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जुडिक्शन को अगर बढ़ाना है तो उसमें भी राज्यसभा बराबर ही है, ठीक है। अब कुछ मैटर में जिसमें वो अनइक्वल है लोकसभा के, कौन कौन से मैटर हैं? तो पहला हो गया भैया कि अगर कोई मनी बिल पास होता है तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। केवल मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। लोकसभा के पास यहाँ पे ज़्यादा पावर है। राज्यसभा मनी बिल में मैक्सिमम क्या कर सकती है, उसमें मनी बिल को अमेंड या रिजेक्ट तो कर नहीं सकती है। विद इन 14 डेज उसको लोकसभा में वापस भेजना होगा। वो चाहे तो कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है या बिना रिकमेंडेशन के भी भेज सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है लोकसभा पे कि वो रिकमेंडेशन चाहे तो एक्सेप्ट करे और चाहे तो ना करे। लेकिन दोनों केस में जो मनी बिल होगा वो पास ही माना जाएगा, ठीक है। द लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। इन बोथ द केसेस मनी बिल डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस। हम पढ़ चुके। ए फाइनेंशियल बिल नॉट कंटेनिंग सोनली द मैटर ऑफ आर्टिकल 110 also can be introduced only in लोकसभा। जो फाइनेंशियल बिल होगी ना अंडर आर्टिकल 117(1) एंड 1 की बात करते हैं हम स्पेशली, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं की जाती हैं। बट विथ रिगार्ड टू द पासेज बोथ द हाउसेस हैव इक्वल पावर। लेकिन जब पास करने की बात होती है फाइनेंस बिल को तो दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर होती है। ये फाइनेंस बिल कौन सी हो गई? आर्टिकल 117 वाली हो गई, ठीक। द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल आर नॉट इज वेस्टेड विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर कोई बिल मनी बिल है कि नहीं बिल है, ठीक है, जब लोकसभा का स्पीकर ही जब लोकसभा में उसको सर्टिफाई करता है ना, तभी वो राज्यसभा के पास ट्रांसफर होके जाती है। राज्यसभा देखता है अच्छा ये मनी बिल है, तब तो भैया अपनी कोई गुंजाइश नहीं है। प्रेसिडेंट के पास भी वही मुहर लगा हुआ बिल जाता है, ठीक। द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर पर्टिकुलर बिल मनी बिल आर नॉट वेस्टेड इन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट। देखो जब ऑर्डिनरी बिल पास होता है, जब पास होने में डेडलॉक क्रिएट होता है तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? केवल लोकसभा का स्पीकर करता है। इस वजह से यहाँ पे भी जो राज्यसभा की पावर है ना वो लोकसभा से कम है। लोकसभा विथ ग्रेटर नंबर विंस द बैटल ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, हमने पढ़ लिया है। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। जो राज्यसभा होती है ना केवल बजट को डिस्कस कर सकती है, लेकिन जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है ना उस पर वोट नहीं कर सकती। ये केवल एक्सक्लूसिव प्रिविलेज किसका है? लोकसभा की, कि उस पर वोट करे। ए रेजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यू, देखो नेशनल इमरजेंसी को अगर डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है, तो डिसकंटिन्यू करने के लिए केवल पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। द राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पेपर। देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन कहाँ पे पास होता है? लोकसभा में पास होता है ना, राज्यसभा में तो पास करके गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकते हैं। तो इस यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो राज्यसभा की पावर है लोकसभा से कम है, ठीक। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास जो लोकसभा के से ज़्यादा है या मतलब अलग बनाती है राज्यसभा को। जैसे कि पार्लियामेंट को अथराइज करती है कि जो स्टेट लिस्ट है उसके सब्जेक्ट भी उस मैटर पे भी ला बनाएं, ठीक है, आर्टिकल 249 के अंदर, ठीक, कुछ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले इशू हो, ठीक। दूसरा कि अगर नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी हुई फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, किसके पास पावर है? राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हुआ, कौन इनिशिएट करेगा रिमूवल के लिए मोशन? तो केवल राज्यसभा ही करेगा, लोकसभा का बस उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगा, ठीक। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हुआ तो इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट होता है? राज्यसभा से ही होता है। इसके लिए बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 67, ठीक है। इफ द प्रोक्लेमेशन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी, देखो अगर नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए, प्रेसिडेंट रूल को, फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए प्रोक्लेमेशन अगर प्रेसिडेंट पास करता है, ठीक है, उस समय जब लोकसभा डिजॉल्व हो, ठीक है, या ठीक है, तो डिजॉल्व हो उस टाइम अगर लोकसभा, ठीक है, तब प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कौन करता है? राज्यसभा ही अप्रूव करता है, ठीक। तो इस मामले में भी राज्यसभा अलग है थोड़ा। एन एनालिसिस ऑफ द अबव पॉइंट्स मेक इट क्लियर दैट द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इज नॉट वीक। देखो जो ये हमने थर्ड वाला देखा, यहाँ से ये पता चलता है कि भाई देखो राज्यसभा का इतना भी पावर वीक नहीं है, राज्यसभा के पास पावर है, ठीक है। ब्रिटिश में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना उसके पास लगभग ना के बराबर पावर है, ठीक। तो उस तरह हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ राज्यसभा के पास पावर है, ठीक है।
अमेरिका की बात करें, वहाँ का जो सीनेट है वो बहुत स्ट्रांग है, उतना स्ट्रांग हमारा राज्यसभा नहीं है, तो कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है ब्रिटिश के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के और अमेरिका के सीनेट के। ठीक, एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैटर एंड कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द पावर एंड स्टेटस ऑफ राज्यसभा इन ऑल अदर स्फीयर। देखो जो फाइनेंशियल मैटर हो गया मनी बिल वाला, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करने की, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सोलली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, इसको छोड़ दें तो राज्यसभा का लगभग सारे स्फीयर में इक्वली पावर है विथ लोकसभा। इवन थाउ द राज्यसभा हैज बीन लेस पावर एज कंपेयर विद द लोकसभा, इट्स यूटिलिटी इज सपोर्टेड। देखो ऐसा माना जा सकता है कि राज्यसभा के पास चलो भैया लोकसभा से कम पावर है, लेकिन इसकी यूटिलिटी कुछ अलग ही है। ठीक है, जैसे कि ये कहीं ना कहीं अगर कोई जल्दबाजी में कोई बिल तैयार किया गया है, कोई डिफेक्टिव बिल तैयार हो गया है, केयरलेस या इल तरीके से कोई लेजिस्लेशन बनाया गया है, ठीक है, तो ये राज्यसभा उसको रिवीजन करने में, ठीक है, उसको दोबारा कंसीडर करने में काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इट फैसिलिटेट गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू इमिनेंट। देखो लोकसभा में एक्सपर्टीज तो होती है नहीं, राज्यसभा में एक्सपर्टीज कुछ मैटर को लेके होती है। जैसे जो प्रेसिडेंट होता है 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है फ्रॉम देयर स्पेशल फील्ड, दैट इज आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, इन सब फील्ड से जो अपॉइंट करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ इमिनेंट प्रोफेशनल राज्यसभा में होते हैं जिनका चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होता है। प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, हमने देख चुके हैं हम पहले भी। इट मेंटेन द फेडरल, ये कहीं ना कहीं फेडरल इक्विवेलेंट, जो कि इसमें जो मेंबर होते हैं ना, वो जो राज्य की विधानसभाएं होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक स्टेट के विल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो ये कुछ स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज़ और कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि दोनों हाउसेस इंजॉय करती हैं, उसकी कमिटीज़ इंजॉय करती हैं या फिर उसके मेंबर्स इंजॉय करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो है पार्लियामेंट है वो इफेक्टिव रूप से इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। ठीक, बिना प्रिविलेज के ना हाउस ना तो अपनी अथॉरिटी, ना डिग्निटी या ऑनर को, ठीक है, या अपने मेंबर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी जो पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं कर सकते बिना इसके। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो एक्सटेंडेड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज टू दोज पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर इन इट्स कमिटी। अब सपोज दैट कोई आदमी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है उसमें स्पीक करता है, बोलता है, ठीक है, उसके प्रोसीडिंग में भाग लेता है, तो कहीं ना कहीं जो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ना उसके ऊपर भी उसको भी मिलती हैं। दिस इंक्लूड अटॉर्नी जनरल, जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हो गए, ये सारे। ठीक, इट मस्ट बी क्लेरिफाइड हेयर दैट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज डू नॉट एक्सपेंड टू द प्रेसिडेंट हु इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ना वो प्रेसिडेंट को नहीं मिलती, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, हालांकि ये पार्लियामेंट का पार्ट है उसके बाद भी। अब क्लासिफिकेशन की बात करें पार्लियामेंट्री की प्रिविलेज की, तो बेसिकली हम इसे दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को। कौन कौन से, तो पहला कि जो दोनों हाउस कलेक्टिवली इंजॉय करते हैं जिन प्रिविलेज को, कलेक्टिव पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जिन्हें बोला जाता है। दूसरा कि कुछ प्रिविलेज हैं जो इंडिविजुअल मेंबर्स खुद में इंजॉय करते हैं, ठीक है, तो उसे इंडिविजुअल प्रिविलेज बोलते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेज की बात करें तो वो प्रिविलेज जो दोनों हाउसेस को कलेक्टिवली मिलती हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, इट हैज़ द राइट टू पब्लिश, जैसे दोनों हाउसेस के पास राइट है कि वो अपनी रिपोर्ट है उसको पब्लिश कर सकती हैं, उस डिबेट को पब्लिश कर सकती हैं, प्रोसीडिंग को पब्लिश कर सकती हैं, ठीक है, और दूसरे किसी भी आदमी को मना कर सकते हैं कि भैया आप रिपोर्ट को, डिबेट को, प्रोसीडिंग को पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, ठीक है, उसने क्या किया, जो प्रेस है ना उसको कहीं ना कहीं फ्रीडम दी, ठीक है, कि अगर वो ट्रू रिपोर्ट जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, ठीक है, बिना परमिशन के भी हाउस के अगर पब्लिश करता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बट ये अप्लाई नहीं है किस केस में, सेक्रेट सिटिंग, ठीक है। जो प्रेस फ्रीडम है ना विद इन द पार्लियामेंट थ्रू द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एक्सटेंड किया गया, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्ट्रेंजर को मना कर सकता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से, इन स्पेशली अगर जॉइंट सेक्रेट सिटिंग हो रही हो, ठीक है, तो उस केसेस में भी आउटसाइडर को नहीं अलाउ कर सकता, मतलब चाहे तो मना कर सकता है। इट कैन मेक रूल टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर एंड कंडक्ट इट्स ऑफ इट्स बिजनेस एंड एजुकेट अपॉन सच मैटर, ठीक है। ये चाहे तो अपना रूल्स अलग से रेगुलेशन बना सकता है ताकि जो पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है ना उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके, ठीक।
इट कैन पनिश, देखो ये मेंबर्स को पनिश भी कर सकता है, या फिर कोई आउटसाइड का मेंबर आया है, ठीक है, उसको भी पनिश कर सकता है अगर वो हाउस का जो प्रिविलेज मिला है ना उसे ब्रीच करता है, ठीक है। कंटेम्प्ट भी लगा सकता है, इम्प्रीजनमेंट भी करवा सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। इट हैज़ द राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट। देखो अगर कोई मेंबर है ना, ठीक, उसको अरेस्ट किया जाता है तो इसके पास सबसे पहले कहीं ना कहीं तुरंत इन्फॉर्मेशन इसके पास इसको पहुंचाने लेने का अधिकार है, ठीक है। डिटेंशन हो, कन्विक्शन हो, इम्प्रिजनमेंट हो या रिलीज हो इसके मेंबर को, तो इसके पास राइट है कि इमीडिएट इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकता है। इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरी एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड सेंड फॉर रिलेवेंट पेपर एंड रिकॉर्ड। कहीं ना कहीं एक सिविल कोर्ट की पावर भी इसके पास होती है, ठीक है। ये इंक्वायरी को इनिशिएट करवा सकता है, ठीक है। अटेंडेंस अगर किसी को चाहता हो, ठीक है, किसी चीज़ में विटनेस है अगर कोई चीज़ कोई आदमी, तो उसके अटेंडेंस को कि आपको पार्लियामेंट में आना जरूरी है, उसके अटेंडेंस को के लिए भी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। और कुछ रिलेवेंट पेपर्स या रिकॉर्ड भी मांग सकता है, ठीक। द कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द, देखो हाउस में अगर जो हुई भी प्रोसीडिंग हो रही है ना उसमें इंटरफेयर कौन नहीं कर सकता, कोर्ट प्रोहिबिट है कि भैया आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक। नो पर्सन आइदर ए मेंबर आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड, देखो चाहे मेंबर हो या आउटसाइडर हो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, या कोई प्रोसेस सिविल हो या क्रिमिनल हो उसके खिलाफ इनिशिएट नहीं किया जा सकता अगर जिस टाइम वो हाउस में सर्व कर रहा हो, ठीक है। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन से किया जा सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल प्रिविलेज, अब जो इंडिविजुअली कुछ मेंबर को प्रिविलेज मिलती है वो क्या है, मान लो सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम कोई मेंबर अरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक। पार्लियामेंट जब सेशन में हो उस टाइम कोई मेंबर अरेस्ट नहीं हो सकता, सेशन के 40 दिन पहले, ठीक है, बिगिन होने के, और सेशन एंड होने के 40 दिन बाद भी कोई भी जो मेंबर है उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जो प्रिविलेज है ना वो केवल सिविल केसेस में अप्लाई होता है, क्रिमिनल केसेस में या प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। जो मेंबर है ना उनके पास फ्रीडम है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि पार्लियामेंट में बोल सकते हैं खुल के। कोई भी प्रोसीडिंग अगर पार्लियामेंट में होती है तो कोई मेंबर उसके लिए लायबल नहीं होगा किसी कोर्ट में, ठीक है। कुछ भी उसने कहा है पार्लियामेंट में या कैसा भी वोट इसने किसी भी पार्टी को दिया है, ठीक है, पार्लियामेंट में या उसके किसी कमेटी में, तो उसके लिए वो किसी कोर्ट में लायबल नहीं होगा। ये जो फ्रीडम है ना ये कहीं ना कहीं अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन के में जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन मेंशन है उसके अंदर आता है, ठीक है। और जो रूल्स या स्टैंडिंग ऑर्डर है ना वो कहीं ना कहीं ये जो फ्रीडम है उसको रेगुलेट करते हैं। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विसेज, ठीक है, इन्हें जूरी सर्विसेज से बाहर रखा गया है, ठीक। ये चाहे तो रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि एविडेंस देने से, ठीक है, अपीयर होने से एज अ विटनेस किसी कोर्ट में, ठीक है, जब पार्लियामेंट स्पेशली सेशन में हो तब। अब अगर प्रिविलेज के बीच हो तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल हो या अथॉरिटी हो डिसरिगार्ड करती है या जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है उस पर अटैक करती है, ठीक है, राइट एंड इम्यूनिटीज़ जो मिली है उस पर अटैक करती है, चाहे वो मेंबर्स के इंडिविजुअली हो, ठीक है, या कलेक्टिव जो प्रिविलेज हैं उस पर हो, किसी तरीके से कोई अगर डिसरिगार्ड करता है इस प्रिविलेज को या अटैक करता है उस प्रिविलेज को, राइट को, इम्यूनिटीज़ को, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कि भैया आपने जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं उनको ब्रीच किया है, ठीक है, और इस वजह से आपको इस चीज़ के लिए हाउस के द्वारा पनिश किया जाएगा। एनी एक्ट आर ओमिजन विच ऑब्स्ट्रक्ट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, देखो कोई काम ऐसा हो किए भैया तुम कि जो पार्लियामेंट है ना या उसके मेंबर हुए या उसके ऑफिसर हुए उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में कहीं ना कहीं अड़चन डालता है, रोकता है, ठीक है, या फिर आपने कुछ ऐसा काम ही किया जिसके अंदर ये क्षमता थी कि वो चाहता तो रोक सकता था पार्लियामेंट का जो बिजनेस है, ठीक है, मेंबर हैं, ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से, तो इसे हाउस का कंटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ठीक। How the two phrases breach of privilege and contempt of the house are used interchangeably, जो breach of privilege है contempt of the house जनरली
एक दूसरे में ऐसे लोग मिक्स करके बातें करते हैं, ठीक है। दे हैव, लेकिन दोनों का इम्प्लीकेशन डिफरेंट है। कंटेम्प्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा जब प्रिविलेज ब्रीच हो तो वो कंटेम्प्ट माना जाए, ठीक है। लेकिन अगर प्रिविलेज ब्रीच हुई है तो वो हमेशा कंटेम्प्ट कहलाएगा। मतलब एवरी कंटेम्प्ट इज नॉट नेसेसरली अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, बट एवरी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज अ कंटेम्प्ट, ठीक है। दिस इज बिकॉज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज ए क्लियर वायलेशन ऑफ प्रिविलेज। देखो, अगर प्रिविलेज ब्रीच हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिविलेज मिली है उसको बस आपने वायलेट किया है, ठीक है। या फिर इम्यूनिटीज मिली हैं, जो पावर मिले हैं उनको आपने वायलेट किया है, ठीक। हाउएवर द कंटेम्प्ट इज मोर जनरल कॉन्सेप्ट। कंटेम्प्ट की बात करें तो कहीं काफ़ी जनरल कॉन्सेप्ट है, वो किसी भी चीज़ पे अप्लाई होता है जो कहीं ना कहीं जो मेंबर्स हैं उनको अपनी ड्यूटी करने में नहीं करने देता है, ठीक है। या उनको जो एबिलिटी है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकें उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाता है। इन अदर वर्ड, द एक्शन विच आर नॉट ब्रीच ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रिविलेज बट आर ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द हाउस अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, ठीक है। मान लो कोई आपने काम किया, ठीक है, जिसने प्रिविलेज तो नहीं ब्रीच की हाउस की, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑफेंस था जो हाउस की डिग्निटी है, अथॉरिटी है, उसको इसने हर्ट किया, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिसओबीडियंस टू अ लेजिटिमेट ऑर्डर ऑफ द हाउस इज नॉट अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। हाउस ने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, आपने उसे डिसओबे कर दिया, तो ये प्रिविलेज का तो ब्रीच हुआ नहीं, ठीक है, बट इसे एज अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस पनिश किया जा सकता है। अब सोर्स ऑफ प्रिविलेज की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 एक्सप्रेसली मेंशन टू प्रिविलेज, ठीक। दोनों प्रिविलेज कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 105 में। द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, ठीक है, कि जो पार्लियामेंट है उसमें आप फ्रीली बोल सकते हो जो मेंबर हैं, ठीक है, और जो इसकी प्रोसीडिंग है उसको पब्लिश करने का, ये दो प्रिविलेज जो है ये आर्टिकल 105 के अंदर मेंशन है। विथ रिगार्ड टू अगर दूसरे प्रिविलेज की बात करें, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश का हाउस ऑफ कॉमन है उसके सिमिलर ही हैं। जो इट्स हाउस ऑफ कॉमन है उसकी कमिटी है, ठीक है, या उसके मेंबर थे जो उनको एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को मिल रही थी, वही सारे कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो गए हैं इंडियन पे भी, ठीक। द 44th Amendment Act 1978 provide that the other privilege of each House of Parliament, its committee and its member are to be those which they had on the date of the commencement, वही है, ठीक है, commencement until defined by the Parliament, ठीक है। This means that the position with regard to the other privilege remains same, ठीक है, जो अदर प्रिविलेज थी वो एज इट इज मिलेंगी। इन अदर वर्ड, द अमेंडमेंट हैज मेड ओनली वर्बल चेंज बाय ड्रॉपिंग अ डायरेक्ट रेफरेंस टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। देखो, जो ब्रिटिश एंड हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लोगों को प्रिविलेज मिलती है ना वहाँ के मेंबर्स को, वही सेम मिलेंगी। बस क्या हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करके, ठीक है, उसे ऐसा जो कि थोड़ा सा कॉलोनियलिज्म टाइप का ना लगे कि अभी भी हमारी कॉलोनियल माइंडसेट है, उसी वजह से थोड़ा सा बदल दिया गया, सीधे उसको रेफरेंस नहीं दिया गया है, बाकी वो प्रिविलेज सेम ही है, ठीक। It should be noted here that the parliament till now has not made any special law to exhaustively codify the, देखो जो हमने 105 के अंदर जो प्रिविलेज, दो प्रिविलेज देखी ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, ठीक है, एक सेकंड वाला कलेक्टिव प्रिविलेज और पहला वाला इंडिविजुअल प्रिविलेज, ठीक है। तो ये इसको छोड़ के जो बाकी और प्रिविलेज है ना वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश से हमने लिया है, ठीक है। अभी तक हम कोई कोडिफाई इसको नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ये बेसिकली 5 सोर्सेज पे बेस्ड हैं जो अदर प्रिविलेज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पहली बात, जो बहुत सारे जो अनेक मतलब जो लॉ बनाए गए पार्लियामेंट के थ्रू टाइम टू टाइम, उससे भी ड्राइव की गई हैं प्रिविलेज। रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस, उसमें भी प्रिविलेज, ठीक है, यहाँ पे प्रिविलेज मेंशन है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में प्रिविलेज मेंशन है, ठीक, या फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में भी प्रिविलेज मेंशन है। अब बात करते हैं सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट की, ठीक। अब हम बात करते हैं सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है। तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि सुप्रीम पावर जो होगी वो स्टेट के पास होगी। सुप्रीम पावर जो ग्रेट ब्रिटेन में है ना वो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये हुआ कि जो पार्लियामेंट करे ना वही खुद में सबसे ऊपर, उससे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। देयर आर नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स अथॉरिटी एंड इट्स जुरिडिक्शंस। जो पार्लियामेंट है
उसकी अथॉरिटी या जुरिडिक्शन पे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नाम की चीज़ है ही नहीं। देयरफॉर द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज कार्डिनल फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वहाँ पर जो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। A.B. डिके थे, एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है ना, इसके 3 इम्प्लीकेशन भी दिए थे। कौन कौन से? इसका मतलब ये हुआ कि द पार्लियामेंट कैन मेक, मतलब पार्लियामेंट चाहे तो कोई लॉ बना सकती है, लॉ को अमेंड कर सकती है, उस लॉ को सब्सटीट्यूट कर सकती है, उसे रिपील कर सकती है। डी लोल में अ ब्रिटिश पॉलिटिकल एनालिस्ट सेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक अ वुमेन अ मैन एंड मैन अ। देखो, जो एक डी लोल में ब्रिटिश पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, उन्होंने तो यहाँ तक ये कहा है ना कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट इतनी सोवरेन है कि वो सब कुछ कर सकती है एक्सेप्ट कि भाई औरत को आदमी बना दे और आदमी को औरत बना दे, बस, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बाई द सेम प्रोसीजर एज ऑर्डिनरी लॉ। अब देखो, सॉवरेनिटी का मतलब यहाँ से एक ये भी है, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर अमेंडमेंट करना होता है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है कुछ केसेस में, ठीक है। लेकिन इनके यहाँ क्या है ना कि वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनेंगे जैसे ऑर्डिनरी लॉ बनते हैं। यही पार्लियामेंट की सोवरेनिटी का ना एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी एंड द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो पावर है या फिर नॉर्मल लेजिस्लेशन करना है, उसके बीच में कोई अंतर ही नहीं है। द पार्लियामेंट्री लॉ कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द जुडिशरी एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अब देखो, एक और मतलब हुआ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए तो उसको जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कोई सिस्टम नहीं है ब्रिटेन में, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सोवरेन बॉडी। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन बॉडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन है पार्लियामेंट पे कि भैया अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के इन फीचर को, जो बेसिक फीचर केशवानंद भारती केस में दिया गया, अगर ऐसे फीचर को वायलेट करोगे तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय जुडिशरी, ठीक है। तो ये बात है। अब रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना सबसे लेंथीएस्ट, वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल लॉ है किसी कंट्री का, ठीक है। ये अथॉरिटी और जुडिक्शन क्या होगा, जो 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उनके अथॉरिटी एंड जुडिक्शन को डिफाइंड करता है, ठीक है। उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा उसको डिफाइंड करता है। हेंस द पार्लियामेंट हैज़ टू ऑपरेट विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट उस लिमिट में काम करे जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, ताकि वो एक दूसरे का जो जुडिक्शन है ना उस एरिया में इंटरफेयर ना करे। देयर इज आल्सो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी और जो कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी है उसके बीच में भी डिस्टिंक्शन है। अब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी क्या, जो लॉ एक्ट करेगी, और कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी कहलाएगी, ठीक है। Moreover, to effect certain amendment to the constitution, the ratification of half of the state is also required। कुछ केसेस में तो भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंडमेंट अगर आपने किया तो हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन भी जरूरी होगी, जैसे कि जो फेडरल फीचर को चेंज करते हों। ये प्रोविजन बेसिकली आर्टिकल 368 टाइप 2 वाली मेजोरिटी के अंदर मेंशन है। इन ब्रिटेन ऑन द अदर हैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिटन नॉर देयर इज एनीथिंग लाइक अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। हालांकि अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही नहीं है, पहली बात। अब रिटन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी किताब में वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं होगा। रिटन का मतलब ये हुआ कि पहले से एक कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा है तभी राइट कर दिया हो, ठीक है, उसमें फिर अमेंडमेंट एक्सेट्रा होते रहें। लेकिन उनके यहाँ ये नहीं है, उनके यहाँ अगर कुछ चीज़ें इवॉल्व होती हैं सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उनका कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ है, हमारा एक जगह पे बन गया है, उनका समय के साथ इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिविंग है, टाइम टू टाइम उसको मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो टाइम के साथ कंसिस्टेंसी में रहे, ठीक है।
बट इनके यहाँ ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि चलो भैया कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं था। इनका ओवर द ईयर इवॉल्व हुआ है, ठीक। इनके यहाँ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, भारत में फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट है, ठीक है। फेडरल सिस्टम का बस इतना सा मतलब है, जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, कि जो पावर एंड फंक्शन है ना यूनियन एंड स्टेट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डायरेक्टली मेंशन है, इसका मतलब वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। बोथ हैव टू ऑपरेट विद इन द स्फीयर अलॉटेड टू देम, जो उसको पावर एंड फंक्शन मेंशन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उस स्फीयर में आप अपना काम करो। Hence, the law-making authority of the Parliament get confined to the subject enumerated in the Union list and concurrent list and does not extend to the subject enumerated in the state list, ठीक है। इसीलिए लॉ मेकिंग जो अथॉरिटी है पार्लियामेंट की, वो किसके ऊपर ही सिर्फ लॉ बना सकता है, यूनियन लिस्ट के ऊपर, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर, ठीक है, सब रेजिडरी सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन स्टेट की लिस्ट के ऊपर लॉ नहीं बना सकता, एक्सेप्ट फ्यू केसेस, जो हमने ऊपर 5 केसेस देखे थे, ठीक है, जैसे नेशनल इमरजेंसी एक्सेट्रा, जो राज्यसभा है, या राज्यसभा अगर अप्रूव करती है और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है, तो वो कुछ 5 केसेस हमने देखे थे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट को अगर लागू करना है, वो भी था, 4 हो गए, और एक और था, ठीक है, आप ऊपर देख लेंगे। ब्रिटेन ऑन द अदर हैंड हैज़ ए यूनिटरी सिस्टम। ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ फेडरल सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ एक यूनिटरी सिस्टम है, सारा पावर जो है वो सेंटर के पास ही है। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करें, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, जिसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है अंडर आर्टिकल 13 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226, ठीक है, जिसके थ्रू आर्टिकल 32, सॉरी, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आल्सो रिस्ट्रिक्ट टू द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन डालती है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर। बोथ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एज वॉइड एंड अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कोई लॉ बनाया गया है उसको अल्ट्रा वायर या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32, हाई कोर्ट को 226 के अंदर, ठीक है। इफ दे कंट्रावीन एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को कंट्रावीन करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज नो सिस्टम, अब ब्रिटेन में कोई जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है नहीं, ठीक है। ब्रिटिश कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट्री लॉ को कुछ सर्टन केसेस में, स्पेसिफिक केसेस में अप्लाई करता है, बिना उसको एग्जामिन, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को एग्जामिन किए हुए उसकी लीगलिटी को चेक नहीं कर सकता, उसके रीजनेबलनेस को भी नहीं चेक कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट इज आल्सो, देखो जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी है उसको कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट भी एक तरीके से एक लिमिट कर देता है, जो पार्ट 3 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि स्टेट को कहीं ना कहीं एक प्रोहिबिट करता है कि कोई ऐसा लॉ ना बनाए जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करे, मतलब उसको क्षति पहुंचाए, ठीक है। हैंस द पार्लियामेंट्री लॉ दैट कंट्रावीन द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। आर्टिकल 13 में है कि पार्लियामेंट्री लॉ जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावीन करेंगे वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इन ब्रिटेन ऑन द अदर हैंड देयर इज नो कोडिफिकेशन ऑफ द जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए कुछ चीज़ें कोडिफाई की गई हों, जैसे हमारे यहाँ पार्ट 3 में है, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज़ आल्सो नॉट मेड एनी लॉ दैट ले डाउन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ भी नहीं बनाया है जो कहीं ना कहीं लोगों को फंडामेंटल राइट्स को के लिए अलग से कुछ बनाया गया हो, लेकिन फिर भी उनके यहाँ सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता है, ठीक है। हाउएवर डज नॉट मीन दैट ब्रिटिश सिटीजन्स डू नॉट हैव राइट्स। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश सिटीजन्स के पास राइट नहीं है, उनके यहाँ कोई चार्टर नहीं है जो कहीं ना कहीं राइट को गारंटी कर सके, लेकिन ब्रिटेन में मैक्सिमम लिबर्टी है क्योंकि वहाँ पे है रूल ऑफ लॉ। देयरफॉर इवन द नॉमिनक्लेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ आवर पार्लियामेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो नॉमिनक्लेचर हुआ या ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न हुआ तो कहीं ना कहीं जो हमारा पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से मैच खाता है, लेकिन काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट, हमारी जो पार्लियामेंट है सॉवरेन बॉडी नहीं है, जबकि ब्रिटिश की पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी है, वही सर्वे सर्वा है। अनलाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट द अथॉरिटी एंड जुडिक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर डिफाइंड। देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है जुडिक्शन और डिफाइंड नहीं है, उनके यहाँ पार्लियामेंट सॉवरेन है, कहीं पे भी इंक्लूड कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ जो पावर अथॉरिटी है पार्लियामेंट की, जुडिक्शन है, वो डिफाइंड है, लिमिटेड है एंड रिस्ट्रेंड है। इन दिस रिगार्ड द इंडियन पार्लियामेंट इज सिमिलर टू, देखो इस मामले में जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन लेजिस्लेचर नोन एज कांग्रेस उससे मैच खाती है। यूएसए में भी जो सोवरेनिटी ऑफ कांग्रेस है ना
वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, बाय रिटन चार्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वो स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल नॉमिनिक्लेचर ऑर्गेनाइजेशन में तो ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे मैच करता है, बट इन रियल सेंस में कहीं ना कहीं अमेरिकन जो सिस्टम है उसको फॉलो करता है, ठीक है। अब एलोकेशन ऑफ सीट इन पार्लियामेंट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड सीट रिजर्व फॉर SC/ST इन लोकसभा, इसको आप अलग से देखेंगे, इसको मुझे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे इसे ज़रूर, खासकर जो इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं, जैसे कि कुछ बहुत छोटे स्टेट हो गए, उनको जो बहुत बड़े यूपी हो गए, जैसे अगर आप स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं तो जो आप अभी उस स्टेट से जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद कुछ हो गए जो यूटी है विथ लेजिस्लेचर, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, पुडुचेरी, इन सब चीज़ों में आप लोकसभा राज्यसभा में जो सीटें हैं ना, उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं, उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो रिजर्व है सीटें उसको ध्यान नहीं रखना है, कभी भी कहीं नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ लोकसभा हुई जिनका ड्यूरेशन कब से कब तक रहा, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर, अब देखो आप स्टेट PSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं शुरुआत के 5 और लास्ट के 5, 4 से 5 जो स्पीकर है ना, उनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसे जो है अरेंज करने को दे देता है। उसी तरीके से ये लोकसभा उसके ड्यूरेशन को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे देगा, ठीक है। आपके पास वहाँ कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के गए हो तो कर ले जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही आप जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो गए, उनका ऑर्डर क्या है उसको भी आप याद करके जाइए। मतलब मैं नहीं कहता कि आपको ऐसे मुँह ज़बानी रटा होना चाहिए, बट आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए कि अगर मान लो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे देता है तो आपके पास इतना स्किल हो कि आप उसे एक क्रोनोलॉजी में अरेंज कर सकते हो। जैसे अभी देखो, अभी कौन है, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जाइए आप, ठीक है। फिर शुरुआत में आपको 2-3 पता होंगे, उनको अरेंज कीजिए। ये लास्ट से 4-5 पता होंगे, उनको अरेंज कर दीजिए। बीच में जो थोड़े हैं उनको आप देख लेंगे, काम खत्म, ठीक है। बस ऐसा ही करना है। स्पीकर का क्या सीक्वेंस रहा है आप एक बार देखेंगे इसे भी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हैं, उनके सब्जेक्ट मैटर है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। आर्टिकल 82 बहुत न्यूज़ में रहा है, डिलिमिटेशन को लेके है, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 82 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है। एडेसिक 87 नहीं इम्पॉर्टेंट है, 88 ठीक है नहीं, 89 नॉट एट ऑल, ठीक, 90 to 93, 93 देखो, 92, 93, 94 आप याद रखेंगे। ये 92 किससे, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल रेजोल्यूशन ऑफ हर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, ये याद रखेंगे। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करेगा जब उसके रिमूवल को लेकर रेजोल्यूशन हाउस में चल रहा हो, ठीक है। दूसरा 93, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर से डील करता है। 94, वेकेशन एंड डिजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर के रिमूवल्स को बात करता है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसेंटली राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे, उन्होंने कहीं ना कहीं लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने के लिए एक जो मोशन है उसको, रेजोल्यूशन है उसको पास करवाने की कोशिश की थी। तो दैट्स वाई देयर इंपॉर्टेंस आर इंक्रीज अ लिटिल बिट, अदरवाइज दे आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 102 इंपॉर्टेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप से डील करता है, ठीक, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं 10 शेड्यूल वाले अलग हैं, ठीक। 103 डिसीजन किसका फाइनल होगा डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ सर्टेन केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ठीक है, आप इसको याद एकदम नहीं रखेंगे, बट अगर वो आ जाए और मैच करने को आ जाए कि भाई ऐसे ऐसे है, 109 को बीच में डाल देगा, बाकी आपको कुछ दे देगा जो आपको पता होंगे, 109 नहीं पता होगा, वो बोल देगा कि मैच करो, ठीक है। आप उसी हिसाब से थोड़ा सा कॉमन सेंस से आप करेंगे तो हो जाएगा। आर्टिकल 110 मनी बिल की जो डिफिनीशन है इसको डिफाइन करता है, ठीक है।
112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 114 अप्रोप्रिएशन बिल को पास करने की बात करता है, ठीक। 117 फाइनेंशियल बिल जो हो गई, स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंस बिल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 116 याद रखेंगे, वोट ऑन अकाउंट है, वोट ऑन क्रेडिट है, एक्सेप्शनल ग्रांट्स है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। 121 एंड 122 ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत याद रखेंगे, इसको आप मिस नहीं करेंगे। 121 कि कोई भी कोर्ट के जो मैटर है ना वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होंगे, आर्टिकल 121 के अंदर। 122 के अंदर कि जो पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रोसीडिंग हुई है उसमें कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 इक्वली इंपॉर्टेंट, ये क्या है, जो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने की पावर है ना उससे डील करता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जिन्हें आप याद रखेंगे। सो दैट्स the end of this chapter. Okay, so we have completed one of the lengthiest chapter of M. Lakshmikant. Okay, and of course it will provide us a lot of relief, and also if we are going to consider the relevance of this chapter in perspective of our examination, of course this chapter is one of the most important. I will say this chapter hold at least 20 to 25% weightage of M. Lakshmikant. Okay, so that's why I will suggest you should have need to very well aware with this chapter, so that whenever any question are going to be asked within the examination, especially from these chapters, you cannot take a chance. Okay, not this chapter is only important for your exam point of view, but also very very important for your general awareness. What is going on the society, what is going in society, what is going in newspapers, what is going in other countries parliament. Okay, so it will directly connect you with this topic and let you understand in better manner to these topics which are in basically newspapers. For example, if you are going to see article 82, ठीक है, डिलिमिटेशन, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर नेशनल स्फेयर एज वेल, बिकॉज देर इज delimitation convention very often in news. Okay, SIR are very often in news. So this is the things which actually the newspaper na act as a mirror for you for the importance of topics for your examinations. Okay, all the questions which are going to be asked within your examination, they are directly or indirectly trying to connect the dynamic portion with the statics. They take the topics from newspapers which are emerging, which is dynamic, and they are going to ask the question from this static portions. So that's why it is very compulsory for you to remember and memorize this chapter. So that's it. Okay, thank you.